न वो तुम बदले ना हम और हमारे हैं वही। न वो तुम बदले ना हम और हमारे हैं वही। फासले बढ़ गए पर कुर्ब तो सारे हैं वही। फासले बढ़ गए पर कुर्ब तो सारे हैं वही। न वो तुम बदले ना हम और हमारे हैं वही। कभी आके देखो तो सही, कभी आके देखो तो सही, बज़ में जहां में कल तक जो तुम्हारे हुआ करते थे, जो तुम्हारे हुआ करते थे, तुम्हारे हैं वही। फासले बढ़ गए पर कुर्ब तो सारे हैं वही। न वो तुम बदले न हम और हमारे हैं वही। जुटपुटों में तेरी यादों से, जुटपुटों में तेरी यादों से वही खेलेंगे खेल, वही गलियां हैं, वही गलियां हैं, वही गलियां हैं, वही सहन चौबारे हैं वही। फासले बढ़ गए पर जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि आपने देखा कि यहाँ इस वक्त तदफीन के मरहले में से हम गुज़र रहे हैं। हमारे प्यारे दोस्त जो अनवर शहजाद खान जो स्विट्ज़रलैंड में काम कर रहे थे एज इंजीनियर, उनकी फ़र्म से इधर काफ़ी बड़ा ग्रुप जहाज़ के ज़रिए पहुँचा तदफीन के लिए। अंदाज़ा लगाना कोई मुश्किल नहीं है कि कैसे वो इंसान थे और किस तरह प्यार से स्विट्ज़रलैंड के ये लोग हैं। इनसे पूछेंगे कि इन्होंने उनको कैसा पाया।
Okay, wir beginnen mit Ihnen. Können Sie kurz vorstellen? Und Ja, dann, mein Name ist Diego Frey, ich bin Geschäftsführer von Alter Gesamtleistungen und habe 10 Jahre mit Anwar zusammengearbeitet. ja. Ich werde Anwar, was mir bei ihm in Erinnerung bleibt, ist seine respektvolle Art. Allen Ja. gegenüber war er respektvoll, er hat allen geholfen und er war immer sehr, sehr professionell und ein sehr, sehr guter Kollege. Wir werden ihn sehr vermissen. Okay, danke schön. Mein Name ist Frank Hoffgert. Ich durfte 8 Jahre mit Anwar gemeinsam arbeiten. Er war nicht nur Kollege, sondern Freund und Mentor. Sehr loyal, rückenstärkend, absolut respektvoll. Förderer und Forderer in jeder Form. Und ich glaube, die ganze Firma wird ihn extrem vermissen. Danke, danke. Mein Name ist Willi Heberli. Der Anwar war sehr ein guter Kollege von mir bei der Arbeit und auch privat. Er saß neben mir und wir haben sehr gern zusammengearbeitet und uns gegenseitig gefordert. Und ich bin sehr traurig, ich kann nicht fassen, dass der Anwar nicht mehr da ist. Wie jeder Mensch hier, keiner kann glauben, was passiert. Wie viele Kollegen sind zusammengekommen heute von der Firma? Wir sind 10. 10 Leute zusammen. Ja. Direkt hierher und dann gleich wieder. Direkt hierher und nachher wieder zurück. Wie nach viele Hause. Mitarbeiter sind in dieser Firma? In dieser Firma so gesamthaft in der ganzen Schweiz sind wir vielleicht 500. 500 Leute. Ja. Und der Herr Khan, der war seit 13 Jahren ein Mitglied? Ich glaube 10 Jahre 10. bei der Firma, Ja. aber andere Leute hier haben mit ihm schon vor 20 Jahren gearbeitet, in ja. anderen Firmen. Okay, okay. Ja. okay. Und Okay. ich war viel mit ihm auch Tennis spielen und ja. Wie haben Sie ihn als Mensch gesehen? Als Mensch hilfsbereit und mit den anderen Menschen? Anwar war sehr hilfsbereit, auch Ja. sehr kompetent und intelligent. Ja, Wir haben uns gegenseitig geholfen ja. und ja, für mich einfach, er war sehr ein guter Vater, so wie ich mitgekriegt habe. Er hat immer sein Junge, der Sonnemann, Ja. gesagt. Ja. Er ist viel Auto fahren. Ja. Ja, nein, er war sicher sehr ein guter Vater auch und sehr ein guter Ehemann, sowie auch Arbeitskollege und ja. Ja, man kann nur wünschen für ihn einen guten Platz im Paradies. Bei jeder Religion nennt man was anderes, bei euch auch. Aber das Ende für jeden Mensch ist fast gleich. Ne? Ja, das ist, stimmt, ja. ja. Nein, es ist ja schade, dass der Anwar geht. Ja, Genau. war sehr ein guter Mensch. Dankeschön. Danke. हमने इस्लामी तरीक़े को जारी रखते हुए अभी चंद मिनट पहले जो मरहूम अनवर शहजाद ख़ान के साथ काम करने वाले स्विस से आए हुए 10-12 दोस्त, उनमें से चंद एक के तसव्वुरात उनके जो अनवर ख़ान को जिस तरह वो जानते थे वो सुने। उनसे लिए भी हमारे साथ मोहतरम हाफ़िज़ फ़रीद खालिद साहब हैं, इनके बरादर निस्बती थे, इनसे ज़्यादा अच्छी तरीके से और कोई नहीं जान सकता। तो ये कुछ बताएंगे कि उनकी जो आदात थी या उनके अंदर जो खूबियाँ थी, ताकि ये सिलसिला जो है मुख्तलिफ़ लोगों तक पहुँचे, दुआ का एक ज़रिया बने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्रादर अनवर जो थे वो उनको बहुत छोटी उम्र में अपने वालिद साहब की वफ़ात का सदमा सहना पड़ा। उस वक़्त उनकी उम्र तकरीबन 16-17 साल थी और उनकी 4 बहनें थीं और फिर वालदा भी। लेकिन उन्होंने अब तक की जितनी ज़िंदगी गुजारी वो बड़े हौसले के साथ, बड़ी हिम्मत के साथ, बड़ी मेहनत के साथ अपनी फैमिली का भी ख्याल रखा, अपनी तालीम को भी मुकम्मल किया, साथ साथ जॉब करके अपनी जो ज़रूरियात थी उनको भी पूरा किया। और उनका एक ही मकसद था कि मैं आला तालीम हासिल करूँ। उनके वालिद साहब की ख्वाहिश थी, वालिदैन की ख़ास तौर पे, तो उन्होंने उस चीज़ को हमेशा सामने रखते हुए इस चीज़ को फोकस किया और अपनी तालीम हासिल की। अल्लाह ताला ने उनको दुनियावी लिहाज से भी, इस लिहाज से फिर नवाजा भी, जो उनके माँ बाप की दुआएं थी, और अपनी बहनों की वो नतुलिश जो थे, अपनी आँखों का तारा थे, और बहनों के साथ भी बहुत मोहब्बत करने वाले, उनका ख्याल रखने वाले, और बहनें को सलूक भी उनके साथ ऐसे ही इंतहाई जो है वो, इवन जो उनका बेटा है वो उसको हमेशा ये कहते थे कि क्योंकि एक ही बेटा है उनका, कि जो खाकसार के दोनों बेटे थे और बेटी थी, कि यही तुम्हारे बहन भाई हैं। और इसी तरह का जो ताल्लुक़ था आखिर तक रखा। और वफ़ात से चंद दिन पहले बता के गए कि मैं जा रहा हूँ, पे तो दुआ करें। और साथ मेरी अहलिया से कहा, पहले मैं हमेशा अपनी वालदा को बता के जाता था, आज मेरी वालदा नहीं है तो मैं आप बड़ी हैं तो मैं आपको बता के जा रहा हूँ
किसी को क्या पता था कि ये उनका आखिरी सफ़र है। अल्लाह ताला उसके दर्जात बुलंद करे, अपनी मग़फ़िरत की चादर में लपेटे और आला दर्जात से नवाज़े। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। हर इंसान जिसने अपने हाथों से अपने किसी प्यारे को ज़मीन के हवाले किया होता है, जब वो वापस दुनिया में निकलता है तो इस तरह के मनाज़र उसको नज़र आते हैं। दुनिया की चहल पहल धक्कम पेल जारी होती है और ये मनाज़र देख के फिर इंसान अपने प्यारों की याद में खो जाता है कि वो भी कभी इन मनाज़र का हिस्सा होते थे। तो ये बड़ा ही गहरा सबक है हमारे लिए कि हम इस वक्त को मत भूलें।